different lots of business for different products, and he is a very renowned CHA for the Nhava Sheva also. Today he will again give a complete session with all the practicality through a presentation for our participant. So let's start. Neeraj, welcome to our platform, and you please go ahead. Let's again start to make all the people understand with a detailed presentation. If and the people will also ask any question answer, you can directly chat with them. Otherwise, end of the session, this session will be from 11 to 12:30, and before 10-15 minutes as per the requirement, we will open the forum for the question answer session. You can ask the question directly or through like chat or question answer format. So let's start the session. Neeraj, please start the session. Yeah, hi everybody. Let's start today's session, which is named eSanchit Awareness Seminar. Can you hear me? Hello? Hello? Yes, सुनाई दे रहा है. Okay, You can continue, sir. Hi, my name is Neeraj Sinha. I'm the director of Cloudsol Logistics Private Limited, which is a logistic provider as well as CHA, and we are giving consultant to many companies for last 20 years. So today, let's start with eSanchit. What are the requirements of export and import? So, what are the requirements for export and import? As you are everyone is aware that an IEC, which is a 10-digit number, is required by any organization who wishes to do the export import. Nowadays, the IC is a PAN based number, meaning that whatever the PAN is there, the PAN number is there, it is your IC. In past, it was an alphanumeric, which is now been converted into PAN. So the requirement of export import, an IC is required, a PAN number is required, and IES a GST number is required, which is all you know is a PAN based. A digital certificate DSC is required. Can you see this DSC which I am holding in my hand is known as DSC. Then a software is required, which is RES package from NIC, which is of two types. One is free and another is developed by the private software developer. Now this private software developer, they have developed it on the base of the RES package, which is developed by NIC, which is a government organization. You people are comfortable in English or Hindi? Hello? Hello? Sir, you can continue in English, sir. Okay. Okay, I will do one thing. I will mix the two and then tell you that. So the large number of people who are 65 in number right now can listen to me. Now there's you can speak in both. Okay. Now next is the bank account number. The AD code and IFSC code is needed for any of the export or import. Next is the invoice and packing list. Everybody knows the importance of invoice and packing list in today's export import. Third is the GAT declaration, where you declare your goods under which condition it is going. Moving ahead, how we do the registration of IC at IceGate. This is the next thing we have to understand. How we do the registration of IC at IceGate. Why do we need to register at IceGate is the first question. So the answer is, one cannot file the documents online without being registered. अगर आपके पास कोई unique ID नहीं रहेगा, तो आप
अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे आइस गेट में। अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। What are the benefit of yourself or your organization getting registered at IceGate? Once registered at IceGate, the IceGate ID used to file all documents online, can see the status of his job online via document tracking system, gets the positive or negative acknowledgement along with the shipping bill and bill of entry number of his job on his registered email ID. You can reply any of the query which comes there. Now, what are the how you will get it registered in the IceGate? Very simple. You have to log on to IceGate website, which is www.icegate.gov.in, and click on the registration link. Moving ahead, I will show you how you will get registered. That is a simple process which I will tell you. What all registration type I can get registered for all export, import. IGM is import general manifest, EGM is export general manifest, and console manifest. For here, since you are exporter and importer, so you get yourself registered for export and import. IGM, EGM is taken care by the freight forwarder, and console manifest is taken care by the freight forwarder. Now, there are two ways of filing at IceGate. One is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, and second is file upload. There are two ways. आप या तो आप अपने ऑफिस से कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम में जाते हैं, उसके EDI के विंडो पे जाते हैं और अपना फाइल देते हैं उसको, वो अपलोड कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं SMTP एंड फाइल अपलोड। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि आप मेल से EDI को भेज देते हैं, वो आपका प्रिंट आउट निकाल के आपको देता है, आप उसको चेक करते हैं, वो अपलोड करता है। फाइल अपलोड में क्या होता है कि आप अपने डेस्कटॉप से ही अपलोड करते हैं यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू how you will get yourself registered at IceGate. Just hold on, I will open a separate file. All of you can see my desktop. Hello. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now, how you will get yourself registered with IceGate? So, first of all, you have to open the IceGate website. It is the website is icegate.gov.in. As soon as you open it, सर वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, फुल ब्लैंक है। एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ। अभी दिख रहा है? हेलो सर आपका प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। वो उसका प्रेजेंटेशन का हेडिंग है रजिस्ट्रेशन एडवाइजरी ऑफ पार्टिसिपेंट गवर्नमेंट एजेंसी इन आइसगेट, दिख रहा है वो?
नहीं, अभी आप स्क्रीन में दिख रहा है हाउ कैन आई फाइल डॉक्यूमेंट वाया आइस गेट, वो वाला दिख रहा है। पीडीएफ फाइल नहीं दिख रहा है? नहीं, पीडीएफ फाइल नहीं दिख रहा है, जो आपका पीपीटी था ना वो दिख रहा है। अभी दिख रही है? सर ब्लैंक है फुल। फुल स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है। एक मिनट। एक मिनट रुकिए मैडम, फाइल शेयर कर रहा हूँ। अभी दिखता है पीडीएफ फाइल? हेलो? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। पीडीएफ फाइल दिख रहा है। अभी आप लोग देखिए, चूंकि ऑनलाइन में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए ये फाइल देखिए आप। ये फाइल में आप जैसे ही आइसगेट पे जाते हैं तो आपको वहां पे आप जैसे ही जाएंगे आइसगेट के पास तो आपको दिखेगा यूजर लॉग इन साइन अप। उस यूजर लॉगिन में साइन अप में आप जब जो क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा उसमें डू यू हैव एन अकाउंट यट। अगर नहीं, आपके पास नहीं है तो आप साइन अप नाउ करेंगे। तो साइन अप नाउ करेंगे तो आइसगेट पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन जो कि अभी आपको दिख रहा होगा वो दिखेगा। उसमें आप एक यूनिक आइसगेट आईडी डालेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे। वो ईमेल आईडी जो कि आपके पास रहेगा, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन आपका आइसगेट के साथ होगा वो ईमेल आईडी के थ्रू होगा। तो वो आपके पास हमेशा होना चाहिए जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो आप जब उसमें चेक अवेलेबिलिटी को करेंगे तो वो आइसगेट आईडी अवेलेबल है कि नहीं वो आपको बता देगा, क्योंकि ईमेल आईडी आपके पास है ही, तो उसकी अवेलेबिलिटी का कोई दिक्कत है नहीं। केवल चेक आइसगेट आईडी जो कि यूनिक होता है वो आपको बता देगा। उस आइसगेट आईडी में there are certain parameters that it should not contain any blank space, it should not contain any special character। वो 25 शब्द से ऊपर नहीं जा सकता है, ईमेल आईडी 50 शब्द के ऊपर नहीं जा सकता है, और इस तरह से रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपको वो बताता है। तो अब वंस यू हैव क्लिक्ड इट वो आपको दूसरे पे ले जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट the availability for iceGate ID and email ID, the user will select the role partner government agency और कि वो आपका रोल क्या है। ठीक है, तो जो आपका पीजीए है यानी पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसी, वो आपको रोल चुनना पड़ता है। तो सिंस यू आर आईसी होल्डर, मोस्ट ऑफ यू आर आईसी होल्डर, मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आप उसको यूजर टाइप जो है वो आईसी होल्डर आप ले लीजिएगा। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब आप कहाँ रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने आप को। अगर आप मुंबई में हेड ऑफिस है तो आप मुंबई लिख लीजिए। मूविंग अहेड,
इन केस द यूजर सेलेक्ट्स हेडक्वार्टर ऑफिस पीजीए, पीजीए पे यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो आपको ये पीजीए शब्द से कोई तरह का कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वो आप पीजीए का मतलब आप यहाँ पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर समझ लीजिए। तो यूजर नीड टू प्रोवाइड द पीजीए कोड इन द पीजीए कोड फील्ड। तो यहाँ पे यूजर का जो है ना इंटर कोड करना पड़ेगा, वो खुद ही आपको लेता है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको रजिस्टर ईमेल आईडी, वन बाय वन, बहुत यूजर फ्रेंडली है, एक एक चीज आपको वो डालते जाना पड़ता है। तो आपका जो एचओडी का मतलब आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, तो आपका बॉस का ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप वेरीफाई कर लेंगे उसमें डाल के। एक बार आपने वेरीफाई किया तो आपसे पूछता है कि कौन से कस्टम लोकेशन फील्ड पे आप काम करना चाहते हैं। तो आप बांद्रा कुर्ला में करना चाहते हैं, जेएनपीटी में करना चाहते हैं, मुंबई में करना चाहते हैं, दिल्ली में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही है लोकेशन, वहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि इंडिया में जितने भी लोकेशन है वो सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ऐसा गलती ना करें। गलती इसलिए नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि फर्स्ट, अगर आपके पास कोई क्यूरी आता है और आपको एनओसी चाहिए किसी एक कस्टम हाउस का, तो आप सारा कस्टम हाउस से आपको एनओसी लाना पड़ेगा। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना चाहते हैं तो सारा जगह से आपको एनओसी लाना पड़ता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी है तो आपको सारा कस्टम हाउस से एनओसी लाना पड़ता है। तो जो रिलेवेंट है आप उसको चूज कीजिए। मान लिया आप मुंबई में कर रहे हैं और कल हो के आप दिल्ली से करना चाहते हैं, तो इसको एडिट किया जा सकता है। आई रिपीट, ये इसको एडिट कर सकते हैं। वी कैन डू द addition and deletion of the custom location in it. Now, second is आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। आपके नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, साथ साथ आपको कुछ आई कार्ड आइडेंटिटी इसमें अपलोड करनी पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और एक लेटर। हेलो, कैन यू हियर मी बेटर नाउ? हेलो, लिटिल लाउडर। ओके, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। तो उसमें आपको एक डालना पड़ता है। पहला आधार कार्ड हो गया या पासपोर्ट या वोटर कार्ड आईडी, जो कि सबके पास होता है, वो उसको आपको अपलोड करना पड़ता है। एनीथिंग विच कम्स which you can prove your identity and it has been issued by government of India, you can use it. उसमें आपको एक स्कैन कॉपी जो है जिसका साइज 100 KB होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकता है, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। आपको एक ऑथराइजेशन लेटर भी अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑथराइजेशन लेटर कंपनी के लेटर हेड पर रहती है, जिसमें लिखा रहता है कि वी ऑथराइज सो एंड सो टू डील विद आइसगेट। वंस यू हैव डन इट, आपके पास ये
डिजिटल की रहता है. कैन यू सी इट, द डिजिटल की? सबके पास डीएससी होना चाहिए. वो डीएससी जो है वो आपको आइसगेट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. जैसे किसी भी पेपर को आप लोग सिग्नेचर करते हैं अपने नाम से, ये डीएससी वही काम करता है. तो उसका पूरा डिटेल आपको इसमें डालना पड़ता है, जो कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. ये सब चीज बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. वंस यू हैव डन द रजिस्ट्रेशन, वो दिखाता है कि कौन सा आपको सर्टिफिकेट जो है आप अपलोड उसमें कर रहे हो. तो इसमें आप सेलेक्ट ओके करते जाएंगे, वो खुद आगे बढ़ता जाएगा. इसमें आपको केवल ओके ओके करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको. केवल आपको ओके करना है. वंस अगेन आई रिपीट, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सेटिंग करता जाएगा. Once the DSC has been uploaded, तो वो आपको ये दिखा देता है कि हाँ कंफर्म कर दीजिए. तो वो आपका जो DSC है, वो आपका सिग्नेचर है, वो अपलोड हो जाता है आपका आइसगेट में. अब उसी एक मात्र DSC के माध्यम से उसके आप थ्रू you can do all the e-sanchit, upload the e-sanchit, file your shipping bill and bill of entry. बिना उस DSC के, क्योंकि उसका जो नंबर होता है यूनिक नंबर, वो जो है आइसगेट में रजिस्टर्ड हो जाता है. उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं. once your DSC has got registered, आपके पास एक OTP आएगी. वो OTP कहाँ आएगी? जो पहला मैंने आपको स्लाइड दिखाया था जिसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, केवल उसी में जाएगी. और वो OTP आपको यहाँ वन टाइम पासवर्ड में डालना पड़ेगा. वंस यू हैव डन विद द OTP, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल. अगर आप देखिए ये क्लिक, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नहीं 2 या 3 ऑफिस रहे, तो आपको जो है उसमें लोकेशन जो है वो चेंज करना पड़ता है. तो हर जगह दूसरे लोग अप्रूव कर सकते, तो वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा. Once it is done, your registration is over. So this is how you get yourself registered at IceGate. किसी ने अपना माइक इशू चालू कर दिया, जिससे कारण बहुत सारे पंछियों की आवाज आ रही है. नीरज, एक छोटा सा क्वेरी है. किसी ने एक रजिस्ट्रेशन लिया है, आइसगेट में रजिस्ट्रेशन किया है, बट उसका 4-5 कंपनी है और डिफरेंट लोकेशन में है. क्या वो सिंगल रजिस्ट्रेशन पे वो बार बार ऑल ऑफिसेस से वो यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर सकता है? द थिंग इज, अगर उसके पास 4 कंपनी है तो उसके पास 4 आईसी कोड होगा, करेक्ट? नहीं, एक कंपनी बॉम्बे से रजिस्टर्ड है, लेकिन 4 उसका ब्रांचेस है. एक सूरत में है, एक और कहीं पे है, और कहीं पे है. ऐसा अगर ऐसे सिनारियो में वो क्या कर सकता है? क्या वो सिंगल पासवर्ड को यूज कर सकता है डिफरेंट लोकेशन के लिए? कोड डिफरेंट हो जाएगा. नहीं, मैं बताता हूँ. अगर उसको ई संचित करना है 4 लोकेशन से, तो वो कर सकता है. ठीक है, उसको मान लिया मुंबई में है तो वो बांद्रा कुर्ला में बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करना है तो वो करेगा. दिल्ली में है तो वो कर सकता है, लेकिन उसका ब्रांच कोड जो है आईसी में, वो सब जगह डिफरेंट है. आप उसी लोकेशन से फाइल कर सकते हैं आईसी बिल ऑफ एंट्री. अगर आपके पास मुंबई का आईसी है और आपने दिल्ली एज अ ब्रांच दिखाया है आईसी में, तो आप बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल वहां से फाइल कर सकते हैं. आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा जो कि चेंज नहीं होता है. वो एक सभी लोकेशन के लिए रहता है, क्योंकि आप मुंबई से बैठकर दिल्ली के लिए भी बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल
विथ योर ब्रांच एज दिल्ली फाइल कर सकते हैं। आपको हर जगह मैन पावर रखने की जरूरत नहीं है। सिंगल पास यूजर आईडी रहता है, सिंगल पासवर्ड रहता है, लेकिन जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करने लगते हैं या शिपिंग बिल, तो आपको मालूम है कि आपको ब्रांच 0 का मतलब होता है रजिस्टर्ड आईडी, 1 2 3 जैसे आपने डाला होगा उसमें आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। रिगार्डिंग ई संचित, आप कहीं से भी फाइल ई संचित कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके आइसगेट में अपलोड होता है शिपिंग बिल ऑफ और बिल ऑफ एंट्री के साथ। सो सिंगल यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप मल्टीपल ब्रांचेस का काम कर सकते हैं। मैडम इज क्लियर? हेलो? Yes, yes. This is clear. सो अभी आपने क्या किया है, अपने आप को आइसगेट पे रजिस्टर्ड कर लिया है। तो आइसगेट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाकी सारे चीजें तो आपके पास उपलब्ध है। आपके लिए नया क्या है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर। वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इट इज कॉल्ड 3 डिग्री डिजिटल सिग्नेचर, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास रहा तो आपका आईसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसी डिजिटल से आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर पाएंगे, शिपिंग बिल फाइल कर पाएंगे, या आप ई संचित कर पाएंगे। सो इट्स वेरी क्लियर कि आपके पास एक डीएससी होना ही होना है, नहीं उसके बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीएससी आपका पेन का काम करता है, कलम का काम करता है। इसी से आप सिग्नेचर करते हैं और ये जो नंबर यूनिक नंबर रहता है वो आपके आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करता है कि हाँ यही व्यक्ति है जो उसने साइन किया है डॉक्यूमेंट देख के। सो एवरीबॉडी इज क्लियर। मैं एक चीज अभी खत्म किया है, दैट इज आइस गेट में रजिस्ट्रेशन। तो मैं 5 मिनट आप लोग को देता हूं, आप मुझसे पूछना कोई चाहते हैं केवल आइस गेट रजिस्ट्रेशन पे, तो आप मुझसे कोई भी सवाल कर लीजिए। सर प्लीज वो चैट में जरा चेक कीजिए, उसमें क्वेश्चन रेज किया हुआ है आपके लिए। केवल एक ही क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कैन यू प्लीज गेट द पीपीटी आफ्टर प्रेजेंटेशन। नहीं सर, और एक है क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चंस है। व्हाट इज द फास्ट प्रोसीजर टू कलेक्ट ईजीएम नंबर फ्रॉम द आइस गेट और एन एक्सेल फाइल डाउनलोड, और व्हाट इज द क्विक रजिस्ट्रेशन। ये 2 क्वेश्चंस रेज किया हुआ है सर चैट वो में। यू कैन चेक फ्रॉम द आईजीएम, नो इश्यूज। आईजीएम यू कैन गो, आप उस पे जा सकते। हालांकि मुझे दिख नहीं रहा है वो क्वेश्चन। सर वो नीचे जो चैट के वहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए तो वहाँ पे है क्वेश्चन सारे। मैडम मुझे एक ही दिख रहा है, कैन यू प्लीज गेट द पीपीटी, जिसमें जीता रानी जी ने बोला यस यू में प्लीज कॉन्टैक्ट जीजेईपीसी। मुझे एक ही दिख रहा है, नहीं आप मुझे वो पढ़ दीजिए। ओके 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 सर, एक क्विक रजिस्ट्रेशन का है, व्हाट इज द क्विक रजिस्ट्रेशन। क्विक रजिस्ट्रेशन जो है, आप आइसगेट पे जाके जब उसके स्क्रीन पे जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप जब जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि आपको डीएससी की जरूरत नहीं रहती है। उसमें आप अपने आप को पूरा डिटेल देके रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें डीएससी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन उससे आप ई संचित फाइल नहीं कर सकते।
उसमें बाकी आपका जो ट्रेड का रिलेटेड चीज है, जैसे आपको किसी तरह का कंसेशन चाहिए, ठीक है, या किसी तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो मिल सकता है आपको, क्योंकि वो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस पीजीए से आप रिलेटेड हैं, वो पीजीए आपको वो सर्टिफिकेट दे सकता है, जैसे एक्सपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने का, या फिर आपको एग्जीबिशन का वो दे सकता है। तो दैट इज उसमें आपको केवल डालना क्या है, अपना आईसी डालना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड डालना पड़ेगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन उसमें डीएससी की जरूरत नहीं है। नीरज थोड़ा सा इंग्लिश में रिपीट कर दो। Okay. Regarding the quick registration, it is not meant for filing your bill of entry or shipping bill or doing the e-sanchez. It is just that you have registered yourself to the concerned PGA. Your PGA is gem and jewelry, so you will get registered there. And any benefit or a issue of certificate, you can approach the gem and jewelry and get that certificate. You can't do any activity of IceGate there. So suppose you want an export-import permission, or that gem and jewelry for exhibition and all that, that you can get it, but you can't do the e-sanchez. It's clear? One more query. Hmm. Somebody is asking whether there is any fast procedure is mentioned to collect the AGM from IceGate. EGM or IGM? EGM. No, EGM can only be given by your freight forwarder. IGM you can check online. What is the difficulty in getting the EGM? Hello? Please ask madam to that concerned person. What difficulty is facing actually? Could you mention what type of difficulties you are facing to get the EGM from IceGate? Why you need the first process? Could you please drop a chart? Okay, let's proceed when the person will drop a chart, we will address the query. So there are two ways of filing at the IceGate. One I showed you. You can do it to get it registered at the IceGate, and you can have your own software and where you can upload the file. And second is you can write a mail to the IceGate and they will upload it, and you have to go to the custom window, ADI window. They will give you a printout. You have to check it, then they will upload it. Now, what is an RES certificate, which I am talking about? As I told you, RES certificate, there are two types. One is the free of cost, which is readily available at ics.nic.in, and you can go there, register yourself in that, and you can file the shipping bill or bill of entry from your desktop, from the office itself. But the main difficulty here is that many a time this website is not working. So the private web software has come, like there are so many. For example, that is Kale Logistic is there, Live Impacts are there. There's so many are there. It starts from 10,000 rupee an year to 1,25,000 rupee a year for different kind of software there. Some have included the accounting in it. Some have included the cost and this loss and profit in it. So there's several
several software. You can go and purchase anyone starting from 9,000 or 10,000 rupee an year. The second is, how can I check the status of my submitted document? User can check the status of the submitted document via logging on the IceGate website with the registered IceGate ID. जो आपने अपने आप को रजिस्टर किया था पहला पीपीटी का फाइल में, वहां पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है। प्रीता मैडम, यस सर। देखिए मैं अपना इंटरनेट खोल रहा हूँ, अगर वो आपको स्क्रीन पे दिखता है तो अच्छी बात है, ताकि मैं इन लोग को बता सकूं कि कैसे वो हो सकता है। एक मिनट होल्ड कीजिए। आप लोग मेरा स्क्रीन देख रहे हैं क्या, जिसमें आइसगेट खुला हुआ है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। ओके, ये मैं बाद में आप लोग को दिखा दूंगा, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। मैं आपको पीपीटी एक बार पूरा कर देता हूँ, तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा हाउ वी कैन सी द स्टेटस ऑफ our document, including the IGM status and the shipping bill status and bill of entry status. Now, user ID cannot be changed. आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बट वंस द यूजर आईडी हैज बीन रजिस्टर्ड यू कैनॉट चेंज इट। तो आपको जो भी लेना है आपको बहुत संभल के लेना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द ई सेंचिट। ई सेंचिट का मतलब होता है, जिसका फुल फॉर्म है ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट। तो ई सेंचिट फुल फॉर्म इज ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट। This is the full form of e-Sanchit. Now, what is e-Sanchit? Can anybody, all of you are seeing my screen? सर Can, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ब्लैंक है पूरा। किससे नहीं दिख रहा है? Just hold on there.
नीरज, अभी दिख रहा है? हाँ नीरज, हाँ, नहीं दिख रहा है। एक क्वेरी है, हाउ इज दिस थर्ड लेवल सिग्नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल जो नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर? मतलब उसमें उसमें सिक्योरिटी अलग अलग होती है। ठीक है, 3 तरह के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 का अलग अलग है। हमारे के लिए जो चाहिए वो 3 डिग्री चाहिए, टाइप 3 चाहिए। तो वो अलग अलग सिक्योरिटी उसमें रहता है और उसका ओके, अलग अलग, जैसे डीजीएफटी में आपको अलग चाहिए, आइसगेट में अलग चाहिए। मगर अगर आप थर्ड 3 टाइप लेती हैं, 3, तो वो सब में एप्लीकेबल है, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आती। ओके। दूसरा क्वेरी ये है, जैसे कि आप डीजीएफटी में रजिस्ट्रेशन करते हो, आईसी कोड लेते हो, तो हु इज द आईसी कोड होल्डर, किसके नाम पे ये रजिस्ट्रेशन है, ये मालूम पड़ती है, राइट? सिमिलरली आइस गेट में किसके नाम पे ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये क्या मालूम पड़ सकता है? फर्स्ट थिंग। आइसगेट पे सेकेंड थिंग, क्या एक कंपनी के नाम पे 2-3 रजिस्ट्रेशन हो सकता है? क्योंकि आईसी कोड जो है आपका, एक कंपनी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन क्या सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होता है कि एक कंपनी को एक ही ई संचित में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक ही पासवर्ड मिलेगा, या मल्टीपल ले सकता है? देखिए क्या अगर है, मल्टीपल ले सकता है, 2 चीजें। आप डीजीएफटी जो आइसगेट से इशू करती है, आईसी इशू करती है, वो यूनिक नंबर होता है एक कंपनी के लिए। तो वही यूनिक जो डीजीएफटी आईसी देती है, वही रजिस्ट्रेशन हो जाता है आइसगेट पे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अलग अलग पीजीए का, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइसगेट में आपका आईसी एक ही रहेगा, यूजर आईडी आपका एक ही रहेगा। आप अलग अलग लोकेशन से जहां से करना है आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स जैसे आईसी गेट में रजिस्ट्रेशन एक कंपनी के लिए एक ही मिलता है, यहाँ पे भी आइस गेट से ई संचित के थ्रू से एक यूनिक कोड एक कंपनी के लिए मिलेगा, एक कंपनी के लिए मल्टीपल नहीं मिलेगा। और कल को उस यूनिक कोड के थ्रू से कुछ भी होता है, कोई भी परेशानी होता है, तो the person whose name this registration has taken, that person will be the liable person. करेक्ट, जैसे आईसी कोड में होता है जी। ओके। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। Now, e-Sanchit was introduced by customs to reduce the physical interface between the custom and the clearing agent or the exporter importer in itself. जो अभी आपका कोरोना से फिजिकल डिस्टेंसिंग दिख रही है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, भैया दूर रहो हमसे, वो चीज ई संचित करता है कि मुझे आपको देखना नहीं है, किसी का भी पेपर रहे कहीं भी जाके फाइल हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप पेपर अपने के यहाँ फाइल करेंगे और आपका कस्टम ऑफिसर जो कि बांद्रा कुर्ला में बैठा हुआ है, वो आपका पेपर असेस नहीं करेगा, कोई चेन्नई का आदमी जो है वो आपका पेपर असेस करेगा। उसको मालूम नहीं है, जब उसके स्क्रीन पर खुलेगा तो उसको मालूम नहीं है कौन एक्सपोर्टर है। अभी दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है, जैसे नहीं दिख रही, प्रोसीड करिए।
अभी नो सर, अभी दिख रही है? नो सर, नो सर। अभी भी नहीं दिख रही मैडम? सर हाँ अभी दिख रही है। आप अभी दिख जस्ट रही कौन सा सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट कीजिए खाली कौन सा। अभी दिख रही है? सर ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक। साइड में पूरा पीपीटी का दिख रहा है पर जो सामने प्ले हो रहा है वो पूरा ब्लैंक है सर। Okay, Neeraj, another query. जस्ट होल्ड ऑन मैम, ये देखो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, उन लोग को दिखाओ तो कैसे दिखेगा। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, जैसे कि आपके आईसी कोड आप डीजीएफटी के साइड में जाते हो और आप टाइप करते हो तो आपका कंपनी का डिटेल्स आता है। सिमिलरली आईसी कोड अगर डीजीएफटी के साइड में आप डालेंगे तो क्या आपका ये ई संचित यूनिक कोड भी विजिबल हो सकता है? क्या मैडम? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि आप डीजीएफटी के साइड में जाते हो, आईसी कोड डालते हो, आपके कंपनी का प्रोफाइल पूरा दिख जाता है। whatever query you want to raise, you can, whatever search you want to do, you can do it. Similarly, through DGFT IC code, can you visible the Unicode and can you enter to the Unicode holder company's detail? Is it possible? आइसगेट में अभी आपको पूरा डिटेल दिखता है कंपनी का, पूरा दिखता है। अच्छा, आइसगेट में भी अगर आप जाएंगे यूनिकोड डालेंगे तो नहीं, आइसगेट नहीं, मैं बोल रही हूँ डीजीएफटी का आईसी कोड, डीजीएफटी के साइट में जाएंगे, आईसी कोड डालेंगे तो वो कंपनी का यूनिकोड भी विजिबल होगा। यूनिक कोड मतलब ये आइसगेट से आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जनरेट करेंगे वो आपके लिए है ना, दैट इज सिक्योरिटी है ना आपके लिए। वो आप अपना बैंक का यूजर आईडी किसी को देती है, नहीं देती है ना? ओके ओके। लेकिन हाँ आइसगेट पे वो सारे मिलते हैं आपको, जो जो डिटेल है। देखो मैडम अभी शेयर हो रहा है, देखिए अभी दिख रहा है, हो रहा है। इसका मतलब आइसगेट का जो भी रिक्वायर्ड है वो डीजीएफटी से पुल करें, लेकिन डीजीएफटी के साइट में आइसगेट का सारा इंफॉर्मेशन पुल नहीं कर सकता है। नहीं, एक दूसरा से इंफॉर्मेशन पुल इसीलिए करते हैं क्योंकि डीजीएफटी जितने भी आपका शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री है वो सारा डिटेल जो है वो डीजीएफटी में जाता है और आरबीआई को जाता है। मान लिया आपने किसी लाइसेंस का फायदा उठाया है, ठीक है, कोई बीआरसी आपको लाना है तो वो सारा चीज डीजीएफटी और बैंक को शेयर होती है। और डीजीएफटी के साइट पे आपका शिपिंग बिल का पूरा डिटेल रहता है कि आपका बीआरसी आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है। नाउ मूविंग टू ई संचित बिकॉज वी आर अभी 11:50 हो चुका है तो वी हैव टू जस्ट स्पीड इट अप। तो ई संचित क्या है कि आपका जो है ई संचित जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को दूर करने के लिए ये बताया गया। यानी आज के डेट में जितने भी सीएचए है या एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, ही हैज टू पर्सनली विजिट
the custom house to get his or her document clear. Moving ahead, जैसे मैंने बताया, अब आपको केवल अपने ऑफिस से ही फाइल कर देनी है डॉक्यूमेंट, बाकी वो कस्टम सारे चीज कर देगा आपका। अगर इंपोर्ट आ रहा है आपको तो सारा चीज हो जाएगा। अगर कोई क्यूरी है तो आपके पास क्यूरी जो है वो आइस गेट के थ्रू आपके पास आ जाएगी, देन यू हैव टू सॉल्व इट। सो जैसे मैंने बताया कि अब ये आ जाएगी, जैसे आपने इनकम टैक्स में सुना होगा कि जब आपके पास इनकम टैक्स की क्यूरी आएगी, आपका असेसमेंट होता रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप इनकम टैक्स मुंबई में फाइल करते हैं तो मुंबई का ही इनकम टैक्स ऑफिसर देखेगा। हो सकता है वो दिल्ली में बैठा हुआ कोई असेस करेगा जिसे आपका ना नाम पता होगा, ना आपका पैन कार्ड नंबर मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम होगा, केवल आपका स्टेटमेंट आएगा। उसी तरह से कस्टम में क्या आप मटेरियल ला रहे हो, उसका क्लासिफिकेशन सही है कि नहीं, ड्यूटी सही है कि नहीं, वो दूसरे आदमी चेक करेंगे, वो मुंबई में चेक नहीं होगा। मुंबई का चेन्नई में जाएगा, चेन्नई का दिल्ली में जाएगा, दिल्ली का मुंबई में आ जाएगा, किसी को Okay. खबर नहीं पता चलेगा। नीरज, ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन चाहे मैं बॉम्बे पोर्ट में फाइल करूं और चेन्नई वाले करेक्शन कर सकते हैं, वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उस पे क्या लूप फॉल्स है या वो अप्रूव कर सकते हैं। बट आवर प्रोडक्ट, एज यू नो आवर सेक्टर, in our product we have to do a physical verification। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जैसे कि डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर वो आईसी कोड का या वो यूनिक कोड होल्डर के पास मैसेज आएगा कि आपका मींस पार्सल आया है, इधर एक्सपोर्ट पार्सल जाना है या इंपोर्ट पार्सल आ गया है, आप आइए वेरीफाई करने के लिए, ऐसे मैसेज कुछ जाएगा अपने आप से? ऐसा मैडम, मान लीजिए आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो आपका जो पेपर पे जो वैल्यूएशन है या आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन जो है, अब आज के भी डेट में भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या पीओ, अप्रेजर सब अपने रूम में बैठे बैठे उसको अप्रेज कर देते हैं, ठीक है। आपको बोलते हैं कि आप ड्यूटी भरो, ड्यूटी भरने के बाद बोलता है कि एग्जामिनेशन ऑर्डर आती है साथ में, उस एग्जामिनेशन ऑर्डर में लिखा रहता है कि इसका ये वेरीफाई करो, इसका ये वेरीफाई करो। तो वो एग्जामिनेशन ऑर्डर जो है वो पर्टिकुलर कस्टम हाउस के लिए रहेगा, ऐसे वो बीकेसी के लिए रहेगा, तो वहाँ का अप्रेजर जाएगा, एज पर द एग्जामिनेशन ऑर्डर वो वहाँ पे चेक कर देगा कि हाँ इसका ये कैरेट है, ये वैल्यू है, 10% करना है या 20% करना है या 25% करना है, वो कर देता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन वहीं पे होगा। आज के डेट में भी अगर आप जेएनपीटी में जाते हैं तो जेएनपीटी कस्टम हाउस आपको क्लियरेंस दे देती है, लेकिन जब आप सीएफएस में जाते हैं तो वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। दैट मीन्स हमारे केस में कैसे होगा, एयर कार्गो में जाके हमें करना पड़ेगा या पीसीसी में जाके इंडिविजुअल इंपोर्ट में सबसे ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट जाता है और पार्शियल री इम्पोर्ट हो जाता है और हमारा रॉ मटेरियल री इम्पोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें री इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। इन दैट केस क्या वो पहले डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद पर्सन को कॉल जाएगा या मैसेज जाएगा, योर डॉक्यूमेंटेशन इज ओवर, यू प्लीज कम एंड डू द फिजिकल वेरिफिकेशन? सब में जाता है। जैसे आपने मान लिया एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एंड दैट इज एन एग्जीबिशन कार्गो, ठीक है, तो whenever the exhibition cargo goes, you issue a letter and the identification of that particular product is written over the shipping bill, ठीक है, कि उसका आईडी जो है या नंबर जो है, बैच नंबर जो है 1 2 3 है, ठीक है। So when it comes back to India after exhibition, the exporter, now which is not an importer, will ask for the first check. तो फर्स्ट चेक में वो लिखेगा अप्रेजर को, go and identify the product and establish the relationship. तो वो आइडेंटिफिकेशन करेगा कि ये बैच नंबर 1 2 3 लिखा है कि नहीं। Once he says okay, then वो अहेड जाता है, नहीं तो वो नहीं आ सकता है। Suppose there is another case, it's a fresh import,
फ्रेश इंपोर्ट है। अभी आप दो तरह की चीज ला सकते हो सकता है आपके पास मशीनरी आ रही हो सकता है आपके पास गोल्ड आ रही हो। हाँ। अब आपके पास गोल्ड जो है अलग अलग प्योरिटी में आती है, तो फिर वो एग्जामिनेशन ऑर्डर में लिखेगा, अगर शक है उसको, कि इसकी प्योरिटी को जांच करो, तो जांच होगा। या उसमें ऑर्डर में लिखा रहेगा प्लीज चेक द सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी, Okay. तो वो प्योरिटी का सर्टिफिकेट केवल चेक करेगा। उसमें लिखा That रहेगा means इसको, every inform. उसमें लिखा रहेगा इसको लैब में भेजो, तो लैब में जाना पड़ेगा उसको। एग्जामिनेशन ऑर्डर Okay. में सारे चीजें लिखी होती आती। तो इसका मतलब अभी कोई भी चीज CHA को नहीं जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिशियरी या स्टेक होल्डर को जाएगा, मीन्स इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी है, और दे हैव टू हैंडल देयर क्वेरी, दे हैव टू कम फॉर द फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, दे लाइक आफ्टर दैट द डॉक्यूमेंटेशन एंड द क्लियरेंस विल बी हैपन, राइट? यस यही यस। है। हाँ, अभी क्या है, थैंक यू। मूविंग अहेड क्या होगा, अगर आपके पास इंपोर्ट रेगुलर आ रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, अभी दूसरे गुड्स में ये होने लगे हैं कि वो आरएमएस में निकल जाते हैं, यानी कि वंस द कस्टम बिलीव्स इन यू कि हाँ आप सही काम कर रहे, तो विदाउट चेकिंग वो निकालने लगते हैं अदर गुड्स। आई डोंट नो हाउ दे आर, बिकॉज ई-संचित इज वेरी न्यू टू योर सेक्टर, तो वो किस स्तर तक आपको इजाजत देंगे करने के लिए, या हर स्टेज पे आपको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, दैट द कस्टम हैज टू डिसाइड। लेकिन सो नीरज, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, you just finish all this presentation, the basic awareness about the e-Sanchit, then you just brief some issues related to our sector which is going to become. ठीक है मैडम, मैं ब्रीफ करता हूँ क्योंकि इट इज ऑलरेडी 12 एंड वी हैव टू फिनिश इट। ओके नाउ, Okay, thank you. आपको मैंने पीजीए के बारे में बताया था, तो पीजीए कैन बी द फॉलोइंग, या कस्टम पीजीए है, आपका फसाई पीजीए है, आपका जेम एंड ज्वेलरी पीजीए है, ड्रग कंट्रोलर पीजीए है। उसमें क्या होगा, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मान लिया आपके केस में आपका कस्टम लिखता है कि इसका कोई प्योरिटी चेक करना है, तो ऑटोमेटिक जो है वो क्यूरी जो है, जो चेकिंग डिपार्टमेंट है, जो लैब है, उसके पास चला जाएगा, वो मटेरियल उसके पास आएगी, वो चेक करके प्योरिटी सबमिट कर देगा। अभी ई-संचित में क्या है, सबसे पहले आपको आइसगेट में उसको अपलोड करना पड़ता है डॉक्यूमेंट। यू हैव टू वैलिडेट ऑल द पीडीएफ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग वैलिड डिजिटल सिग्नेचर, जो कि मैंने आपको दिखाया। नाउ व्हाट विल हैपन, आपने जितने भी इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी, वो आपको पीडीएफ वर्जन में अपलोड करना पड़ेगा, और वो कोई भी 1 MB के ऊपर नहीं जा सकता है। और आपको ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड हो, उसके लिए आप रेजोल्यूशन जो है वो 200 के आसपास रखिए, ब्लैक एंड व्हाइट रखिए, कलर डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। 1 MB में रफली 13-14 पेज जो है वो अपलोड होता है। मैक्सिमम साइज पर फाइल इज 1 MB। आप एक साथ 5 डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। एक साथ DRN नंबर आपको 5 मिल सकता है। 1 IRN में 5 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और आप, अगर आपके पास फाइल बहुत बड़ी है, इनवॉइस मान लिया आपका 100 पेज का है, तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, 1 2 3 4 5 इनवॉइस 1 2 3 4 5, ऐसा करके आप 5-5 करके जितना बार भी आपको अपलोड करना है आप कर लीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मेरा तो 100 पेजेस का इनवॉइस है, अभी 1 MB में कैसा होगा। कोई बात नहीं, आप ब्रेक करके उसको अपलोड कर दीजिए, आपको कस्टम जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखाने की कोशिश करता हूं कि हाउ द ई-संचित इज डन।
उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि बहुत सारे लोगों का ये क्यूरी है कि अगर मेरा ई संचित मैंने अपलोड किया और मुझे कोई चेंजेस करना है तो क्या करना है। कोई बात नहीं, अगर आपने ई संचित अपलोड किया है और आपने उसको शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री से अटैच नहीं किया है तो आप एम नंबर ऑफ टाइम्स उसको चेंज कर सकते। अगर आपने शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया है तो जो प्रॉपर कस्टम ऑफिसर है वो क्यूरी रेस करेगा। आप अपने वापस ऑफिस में आइए, एक IRN DRN नंबर जनरेट कीजिए, वो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, वो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट जो है वो IRN DRN नंबर वो जाके EDI के विंडो पे दीजिए, वो अपलोड कर देगा। फिर वो डॉक्यूमेंट जो है या आपसे गलती हो गई या कस्टम ऑप्शन एक्स्ट्रा मांगा है आपसे तो वो फिर से अपलोड हो जाता है। now I am going to give you a live demo how these things are done. For that I will try कि मेरा इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो आपको दिखे। Just hold on. स्नेह, Thank you. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, दिख रहा है। अभी देखिए ये आइसगेट का स्क्रीन है। तो जो मैंने आपको बताया था पहला स्लाइड में कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है, तो आपको यूजर लॉगिन एंड साइन अप में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको ये साइन अप नाउ करना पड़ेगा और यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? Yes, sir. Yes, proceed. नाउ आपने पूछा कि आइसगेट में कैसे देखते हैं। देखिए आइसगेट में आप जाएंगे आइसगेट में आप अपना डॉक्यूमेंट स्टेटस देखिए, पब्लिक इंक्वायरी में जाइए, डॉक्यूमेंट स्टेटस। अब आपको बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस देखना है कि आपने जो फाइल किया उसका क्या स्टेटस है, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो वो आ जाएगा। आपका एयर IGM का क्या स्टेटस है, तो जैसे ही आप डालेंगे एयर IGM का स्टेटस तो ये आ जाएगा। आप उसमें अपना लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर एवेलेबल नंबर, देन यू विल गेट द योर स्टेटस ऑफ IGM। उसी तरह आपको जो है वो एयर कंसोल का भी मिलता है अगर आप कंसोल में ला रहे हो तो। मैडम ने पूछा था कि आइसगेट में कहाँ दिखता है। ये देखिए चेक आइस कोड एंड बिन स्टेटस, इसमें आप क्लिक कीजिए। किसी का भी आपका डालना चाहते हैं आप कि उसका IC का क्या स्टेटस है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए आ गया विमल डायमंड, उनका स्टेटस 9 है। 9 मीन्स अमेंडमेंट हुआ। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? 1 है। किसने कौन सा किसने कहाँ कितने शिपिंग बिल डाले हैं ये भी आपको दिख जाएगा यहाँ। देखिए IC वाइज समरी में आप जाइए।
ठीक है, यहाँ पे आपको अपना 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 आई अपना अपना आईसी नंबर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आता है। जैसे ही आप डालेंगे ये पूरा शिपिंग बिल समरी आ जाएगा, बिल ऑफ एंट्री समरी आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाता है। हो गया, जब पानी लाइसेंस रिसीव्ड फ्रॉम डीजीएफटी में कौन सा लाइसेंस कब आया है, किसको आया है, ये पूरा आइस गेट में आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो अगर आप आइस गेट में जाना जाके आप खुद भी थोड़ा R&D कीजिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ तो यो यूजर लॉगिन और जाएंगे। जैसे मेरा क्लाउडसोर्स से रजिस्टर्ड है तो मैं अपना खुद ही कर सकता हूँ हर चीज। आई विल शो यू हाउ। सबमिट किया मैंने, ये खुल गया मेरा। अब मैं जॉब स्टेटस देख सकता हूँ अपना, ई पेमेंट कर सकता हूँ, फाइल अपलोड कर सकता हूँ, एंड अगर मेरे को कोई इंपोर्ट है तो उसका मैं यहीं ऑफिस से बैठे बैठे गुड रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो हेलो, यस सर सुनाई दे रहे हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है ना गुड रजिस्ट्रेशन की? हाँ दिख रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि ई संचित कैसे किया जाता है। आप ई संचित के लिए आपके पास टाइप 3 डिजिटल सिग्नेचर होता है जिसको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। तो उसको हमने उसको पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में लगा दिया। ठीक है, अभी हम पहला डिजिटल सिग्नेचर करके आपको दिखाते हैं। आपको अपना फाइल जिसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी है वो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए आपको, ऐसा जगह जहां पे आप तुरंत जा सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे अवेयरनेस करके एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने ये फाइल रख दी है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और डिटेल्स में दिखा दीजिए या बता दीजिए। क्या करने के लिए मैडम? डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ई थर्ड, संचित, ई हाँ ई संचित करने के संचित लिए। में, हाँ तो वही तो ई संचित में जो चाहिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन आपका डिजिटल सिग्नेचर थर्ड लेवल का, वो पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं, चाहिए? डिजिटल सिग्नेचर इज इशूड बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जब वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करेगा तो कंपनी का आईसी लेगा, पैन कार्ड लेगा और आपका ऑथराइजेशन लेगा। कोई इंडिविजुअली खुद अपने आप से करने के लिए चाहे तो नहीं हो सकता है? नहीं तो मैडम ये आपका जो है ना वो यूएसबी से वो जो है गवर्नमेंट एंड ऑथराइज सर्टेन एजेंसीज दे कैन ओनली गिव यू द डीएससी। ओके, वो उसका दाम 1,500, 2,000, 3,000 रुपया है, वो लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके लिए रखा है जिसका 4 डॉक्यूमेंट मैंने रखा है। एक एलओटी है, एक इनवॉइस है, एक पैकिंग लिस्ट है। तो इनवॉइस खोल के मैं आपको पहले दिखाता हूँ। दिस इज द लाइव डेमो ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू डू द ई संचित। ये किसी का एक्सपोर्ट इनवॉइस है, 1 पेज का, ठीक है, 2 पेज का, सॉरी। तो ये आपका एक इनवॉइस है। नाउ यू हैव टू डिजिटली साइन दिस, मीनिंग आपको ये ई संचित करनी है। तो सबसे पहले आप खोलेंगे आइस गेट। आपने आइस गेट खोला, इसमें आप नीचे जाइएगा,
तो आपको दिखेगा नेट इज स्लो. आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिजिटल सिग्नेचर, उसमें थंब इंप्रेशन है. पहले का लोग साइन नहीं करते थे, थंब इंप्रेशन देते थे. आज के लोग पहले पेन से साइन करते थे. उसी का एडवांस वर्जन जैसे मैंने बताया, ये सिग्नेचर है विच इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर. यू क्लिक इट. पहला आपको कॉमन यूजर यूटिलिटी टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट क्लिक कीजिए. साइन पीडीएफ फाइल्स. एक चीज आप लोग सबको समझ लीजिए, जब भी आपके कंप्यूटर हेलो, यस सर बोलिए. अभी आ रही है? स्क्रीन आ रही हाँ है? हाँ, स्क्रीन आपका ही दिखाई दे रहा है. शेयर स्क्रीन कीजिए आप. एक मिनट रुकिए मैडम, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. तो एक बार जब आप जाते हैं उस पे, तो आपको ई संचित करने के लिए उसमें पीडीएफ को साइन करनी पड़ती है. तो पीडीएफ सिग्नेचर के लिए आपका मैडम इट्स नॉट वर्किंग. हेलो, नीरज एक काम करिए, हाँ वो लाइव डेमो छोड़ दीजिए, शायद नेटवर्क का ज्यादा प्रॉब्लम है. Let us explain one thing. If our sector is going to be completely 100% e-Sanchit mode, then what are the problems going to be come, because it's a very different kind of sector, and how the people will go for the physical verification.
Again, if they will go for the physical verification by person, the same harassment by the custom officer may take. So what is the solution through e-Sanchi? And who, like which sector getting the RMS? Why the government is reluctant to consider our sector for the RMS? It just explains these 3 points, and already we are reaching 12:15. We have to wind up the session within 15 minutes. Okay, the thing is, look, e-Sanchit अभी जहाँ implement हो चुका है वो एडवांस स्टेज में, आप लोग अभी भी प्राइमरी स्टेज में, क्योंकि आप लोग के यहाँ जो e-Sanchit का इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो लेट हुआ, क्योंकि आप लोग का जो सेक्टर है वो गोल्ड एंड प्रीशियस जेम एंड ज्वेलरी में डील करता है, इसलिए गवर्नमेंट पहले दूसरे सेक्टर पे सक्सेसफुल हुई, तो उसके बाद वो आपके यहाँ आ रही है। मूविंग अहेड वो क्या होगा, e-Sanchit का मेन एम है आपको कस्टम से दूर रखना। आज के डेट में क्या है, देयर आर मेनी केसेस वेयर कस्टम इज अननेसेसरली हरासिंग यू कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका डॉक्यूमेंट एसेस कर रहा है। तो जैसे ही आप e-Sanchit के थ्रू बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करेंगे, तो वो उसको either he has to pass the document or within a time limit he has to put a query to it कि why this document has not till date been assessed by the concerned custom officer। तो एक तरह से ये आपके लिए अच्छी बात है कि कस्टम ऑफिसर आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों मैंने रोका है डॉक्यूमेंट, तो आपको हरास नहीं कर सकता। दूसरा, एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट आजीवन कस्टम के साइट पे रहता है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर दैट डॉक्यूमेंट विच यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड, वो हमेशा के लिए रहता है, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर 10 साल के बाद भी खोजेगा तो वो डॉक्यूमेंट उसको मिल जाएगा। जब वो असेस करेगा आपका डॉक्यूमेंट तो आपको फिजिकली कॉपी लाने की जरूरत नहीं है, हालांकि अभी आप ला के दे रहे हो, लेकिन मूविंग अहेड वो लाने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने लैपटॉप पे ही जो आपने e-Sanchit में इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी जो भी आपने डाला है वो खुद देख लेगा। अगर क्यूरी है तो उसे क्यूरी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज टू एसेस इट। अगर एक्सपोर्ट में उसको कोई बॉन्ड चाहिए, चाहे बैंक गारंटी चाहिए, व्हाटएवर इट इज, तो उसको लिखना पड़ेगा एंड ही हैज टू गिव अ रीजन टू इट। सेकंड, आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको एक टाइम e-Sanchit करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिजिकल कॉपी की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सॉफ्ट कॉपी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे आजीवन उपलब्ध है। आपके पास केवल DRN नंबर होना चाहिए, IRN नंबर होना चाहिए, वो चला जाता है। जैसे आज के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 का केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी कस्टम ने क्या किया है इंपोर्ट के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सेक्टर, आपके सेक्टर में थोड़ी देर में ये इम्प्लीमेंट होगी। अभी JNPT में इम्प्लीमेंट हो चुकी है कि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, आपका एसेस हो जाएगा, आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन ऑर्डर है तो आप एग्जामिनेशन ऑर्डर के मान ली 10% है या 15% है तो आपको एसेस करना पड़ेगा। अगर 0 एग्जामिनेशन ऑर्डर है तो आपको आउट ऑफ चार्ज मिल जाएगा। आपको कस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ चार्ज का कॉपी जो कि अभी आप कस्टम में 90 रुपया दे के लेते हैं, 15 पेजेस या 10 पेजेस, वो देने की भी जरूरत नहीं है। वो बार कोड के साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगी, साथ साथ आपका आउट ऑफ चार्ज के साथ गेट पास भी आपके पास आ जाएगा। वो ऑफिसर जो कि गेट पे है वो आपका वहीं से बार कोड से वो रीडिंग कर लेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, वो आउट ऑफ गेट हो जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपके यहाँ भी वो दिन आएंगे, थोड़ी समय है लेकिन आपके आएंगे, क्योंकि आप लोग प्रीशियस आइटम में डील कर रहे हैं।
बहुत सारे आइटम जिनको ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, कस्टम अफसर को लगता है कि चेकिंग की जरूरत नहीं है, वो पास हो जाएगा, लेकिन 100% पास नहीं होगा। हमारे के यहाँ आज के डेट में 80-85% आरएमएस करने की कोशिश करते हैं। आपके के यहाँ स्टार्टिंग में 10 से 12% आरएमएस होगा, उसके बाद मूविंग अहेड कैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है तब करेंगे, क्योंकि आपके के यहाँ प्रीशियस आइटम है। हमारे के यहाँ मशीनरी आती है जेएनपीटी में, जो कि नेकेड आई से दिखता रहता है कि ये जो है वो तार वाली ही मशीन है, ये तार बाइंडिंग कर सकती है। आपके के यहाँ डायमंड नेकेड आई से नहीं दिख सकता है कि वो डायमंड है ये क्या है, नहीं दिखता है, इसीलिए उसको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है। तो मूविंग अहेड आपके यहाँ एक फेज आएगा बीकेसी में कि सीएचए या एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टम सिंगल विंडो से क्लियर कर देगा उसको। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंपोर्ट आया और उसके प्योरिटी पर उसको शक है तो वो लैब को, पीसीसी को दे देगा, वो उसका प्योरिटी चेक करके प्योरिटी रिपोर्ट लाके दे देगा। अगर वो प्योरिटी रिपोर्ट एज पर योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है तो आपका जो है वो आउट ऑफ चार्ज का कॉपी और गेट पास ऑटोमेटिक आपके पास ईमेल हो जाएगा। मैडम और बोलिए। No, it's okay. Means you are quite positive about the RMS because we are trying since so many years to do some portion of our product, particularly loose diamond, through RMS, which is not possible. And not, means in this current scenario, this is not accepted by the custom officer. So it's, you said maximum sector is already started doing the RMS and custom is accepting. We are also very hopeful that certain amount 10, 15, 20% should be going through the RMS, means our maximum like issue and expectation will be resolved. So we are like, as you are very positive, and according to your positive words, we are also feeling very positive and enriched. However, I'm feeling that this entire session, which is too technical, need a physical meeting and physical presentation. I will try again to keep another session after COVID for all my exporters and different region to make and give more clarity and make maximum people for the registration. And I'm looking for your cooperation and your support again. So I am not receiving any queries, so let's complete the session here, because within 2 minutes we will by default disconnected from the Zoom. So thank you so much, Neeraj, and I'm quite positive I will, maybe if the COVID will continue, then I will keep another session for another region through the Zoom, and I hope you will accept again my invitation, and thank you for this time. Thank you. Okay then. Thank you so much. Thank you. Thank you all the participants and Preeta, as well as our IT team for their support. And the participant, I think they will raise the question, and they are looking for the presentation also. If you possible, you can share the presentation with ZJPC so we can circulate among them. Otherwise, No issue, YouTube will be guys. available. By the evening, I YouTube will. will be available. You can go through the YouTube also. Thank you so Okay, much. ma'am. Thank you, Neeraj. Thank Thank you. you, participant. Thank you, Preeta. And our IT Thank you. team. Thank you. Thanks.